A very good morning to all my dear students. Let's continue with the same chapter, New Economic Policy or Economic Reforms since 1991. Today we are going to start with a discussion of the last topic of this chapter, that is an appraisal of new economic policy or economic reforms. When we say appraisal, means we see in detail the pros and the cons. Pros means the positive side of this policy, con means the negative side of this policy. So let us have an appraisal in detail. First of all, we will start with arguments in favor of economic reforms. What were the arguments which favored these reforms, or what were the positive side effects? So first of all is increase in the growth rate of the economy. Here we are talking of the growth rate of what? Growth rate of real GDP. This is most important thing. It is the growth rate of real GDP. So during the 10-year times before and after this policy, it remained stable at 5.5%, but it rose to 8.2% in 2016-17. It means it is a positive sign that this policy proved to be a boon for the Indian economy. हमारे लिए वरदान साबित हुई. जो रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट थी, जो पहले 5.5 के अराउंड थी, इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद काफ़ी इंक्रीज हुई और इट वाज 8.2 इन 2016-17. इट शोज दैट दिस पॉलिसी हैज लेड टू इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी. सेकंड, इंक्रीज इन द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया. पीएसयूज को लिमिट कर दिया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की एक लिमिट कर दी गई. जो पीएसयूज अच्छा काम नहीं कर रहे थे उनको बंद कर दिया गया. जो एरियाज पहले गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व थे उनको डी रिजर्व कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए. सो एबॉलिशन ऑफ द लाइसेंसिंग, रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस on the entry of the private sector in those areas which were earlier reserved for public sector undertakings increased the role of the private sector in the economy. So this was the second positive effect of the economic reforms. Third is the structural changes. Structural means contribution of the sector, primary sector was earlier too much. Then it shift from secondary to tertiary. Look here, shift of the contribution from the primary to secondary and then tertiary. During the reforms, the growth rate of 8% is mainly due to the growth rate of the service sector. It shows the role of the service sector has increased in the economy because of the economic reforms. Then is a control on inflation. What does it mean? Inflation means महंगाई, जो कि पहले बहुत ज्यादा थी, around 17%. Because of the economic reforms came to 3%. Increase in the production, tax reforms, production was increased. There were tax reforms, we have already studied it, and the other reforms. These all helped in controlling the inflation. The annual growth rate of inflation reduced from peak level of 17% in 1991 to merely 3% in 2017-18. So these were the 4 positive effects of this economic policy. Point number 5, we will start with consumers sovereignty. What does it mean? Consumer sovereignty का क्या मतलब है? पहले भी हमने पढ़ा था. Consumer became the king of the market. उसको बढ़िया चीज मिल रही है, वैरायटी मिल रही है, क्वालिटी मिल रही है और
प्राइस भी बहुत रीजनेबल, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, सब तरफ से उसको सप्लाई आ रही है, इस करके कंज्यूमर बिकेम द किंग ऑफ द मार्केट. इट हैज एक्सपेंडेड ओवर टाइम. लार्ज वैरायटी ऑफ G&S का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज at reasonable prices are now within the reach of the buyers from the global market. Therefore, consumer is the king of the market. Then is a increase in the forex reserves. Foreign exchange के reserves बहुत increase हो गए. क्या foreign exchange के reserves? जो कि it was only 6 billion. You see, US dollars 6 billion in 1990-91 and it rose to 321 billion, around 53 times more. 53 गुना 50 से ऊपर टाइम ये इंक्रीज हो गए 6 बिलियन से 321 बिलियन इन 2014-15. और आज बहुत हम जो है फॉरेक्स होल्डर है पूरी दुनिया में, बहुत बड़ा हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन किया हुआ. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. नेक्स्ट इज द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया, इससे भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लग गई. हमने पहले भी लिबर्टी दे दी थी 91 में, उससे भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लग गई. सो FDI increased from $100 million to $73.5 billion. वो 100 मिलियन है और इधर कितना हो गया 73.5 बिलियन in 2014-15 with the launch of Make in India in September 2014. So FDI increased around 48%. So this is also one of the positive sign of this new economic policy, a positive side of this policy. Shift from the monopoly to the competitive market. पहले तो पता ही था कि मोनोपोली है, कोई सुनवाई थी नहीं, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन तो था ही नहीं. विद इन द डोमेस्टिक ट्रेड था, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने दी हुई थी, आपने पढ़ा है. और PSUs वर incurring the loss, they were burden on the government. अब क्या हुआ, अब मोनोपोली वाला वो काम टूट गया और पूरी मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया. तो अभी हमने ये इसके पूरे 8 पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स पढ़ लिए. पॉजिटिव इफेक्ट्स कह लीजिए. नंबर 1, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज हो गई, रियल GDP. नंबर 2, रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज हुआ, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल हो गया, कंज्यूमर एक किंग बन गया, फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत इंक्रीज हुआ, और हमारी जो मोनोपोली मार्केट था पहले अब वो कॉम्पिटिटिव में बदल गया. ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं. अब क्या क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स रहे, लेट्स स्टडी. शिफ्ट नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज. नंबर 1, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट. अभी अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो हम इस पर जीत हासिल नहीं कर सके. उसका रीजन बेशक पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत बड़ा रीजन है, करप्शन भी काफी बड़ा रीजन है. और मैं शुरू से कहता हूं ये 2 अगर कंट्रोल कर लोगे कंट्री ग्रो कर जाएगा. देखो, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वाज बिफोर द रिफॉर्म्स 2.6% एंड इट वाज जस्ट 2% आफ्टर द रिफॉर्म्स. इसका मतलब ये हुआ कि हमने एम्प्लॉयमेंट के एरिया में इन रिफॉर्म्स के कारण से कोई बहुत बड़ी चीज हासिल नहीं की. दिस इज वन ऑफ द फेलियर. कम टू द नेक्स्ट वन, निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. कोशिश तो की गई थी कि ऑलराउंडर इफेक्ट्स ऑलराउंड एरिया पर रहे, ओवरऑल इफेक्ट अच्छा रहे, लेकिन एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो गई. देखो कैसे. इट इज एज पर द इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन.
IAP, Index of Agricultural Production, during the 10 years before reforms it was 3.8%, the annual growth rate, and after the reforms it was merely 1.7%. Look here, यहाँ 4% और वो उसका हाफ हो गया 2% अगर हम राउंड ऑफ करते हैं। इसके भी कुछ कारण रहे। क्या कारण रहे? नंबर 1 was fall in the investment in agriculture. एग्रीकल्चर पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया सरकार ने, उस पर जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी वो नहीं की, और allowing the export of the agricultural products, क्योंकि यहाँ का सामान जब बाहर जाएगा तो डोमेस्टिक सप्लाई कम हो जाएगी, और जब डोमेस्टिक सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो दिस हैपेंड हियर, इट हैज पुट प्रेशर ऑन द डोमेस्टिक सप्लाई कॉजिंग इंक्रीज इन द प्राइस। ये दूसरा कारण रहा। और तीसरी चीज, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स लीडिंग टू रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटीज, इट ऑल्सो अफेक्टेड द फार्मर्स पोजिशन। देखो बेटे, क्या है ये कॉन्सेप्ट? एग्रीकल्चर पर इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, एक तो सबसे बड़ी कमी ये हो गई। फिर हमने एक्सपोर्ट करना अलाउ कर दिया, तो जो सामान बाहर चला गया तो कंट्री में तो रहा नहीं, तो कंट्री में उस चीज की कमी आ गई। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या हुई कि जो फॉरेन ट्रेड के रिफॉर्म्स हुए, इससे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई, तो एग्रीकल्चरल जो फार्मर की पोजीशन थी उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा। क्यों? रीजन क्या हुआ? क्योंकि अब जो थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाहर से भी आने लग गए, तो जो फार्मर, अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात आ गई, अगर वो कॉस्ट को मैनेज नहीं करेगा तो वो चीज उसकी नहीं बिकेगी। तो इस करके एग्रीकल्चर पर इसका कोई खास अच्छा इफेक्ट नहीं रहा, इसीलिए हम इसका नेगेटिव इफेक्ट लेते हैं। नेक्स्ट इज इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आपको पता है ना, धीरे धीरे सरकार ने अपना शेयर होल्डिंग कम कर दी और प्राइवेट सेक्टर को बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक तो बहुत स्लो थी, और इस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी से जो पैसा मिल रहा था वो भी प्रॉपर चैनल में यूज नहीं हुआ। देखो, process of DIT means disinvestment was very slow, number 1, and the income was used to meet the revenue shortages rather than functioning of the PSUs. Means जो मेन एम था कि इससे जो पैसा आए उसको, जो फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको इंप्रूव किया जाए, उस पर तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि जो रेवेन्यू की कमी थी, रेवेन्यू शॉर्टेजेस, उसी को इसमें मैनेज किया गया। सो दिस वाज आल्सो द इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देन वाज इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी। देखो यहां पर क्या चीज खास रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए टैक्स कंसेशन दे दिए, टैक्स हॉलीडेज दे दी, चीप इलेक्ट्रिसिटी कर दी। इसका नुकसान ये हुआ कि उनका टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम हो गया, वो टैक्स कलेक्शन कम हो गई। देखो, रिडक्शन इन द टैक्सेस डिड नॉट इंक्रीज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ड्यू टू टैक्स कंसेशन टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी, इट कॉज्ड लिमिटेड टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. So this was also one of the drawback of this new economic policy. Next is very simple, spread of consumerism. आज देख ही रहे हो आप, एक नया मोबाइल लॉन्च होता है तो हम नया मोबाइल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, स्मार्टफोन नया लेना है। तो what is this? This is all spendthrift nature. It's not right. It's a misuse of our money. अगर एक चीज आपके पास है और अच्छी कंडीशन में और अभी नहीं लिया आपने, तो नया लॉन्च होने के बाद हम हर बार नया लेंगे, I don't feel that it is something good we are doing. We should not misuse our resources. And you know, misuse of anything always leads to serious consequences. यहाँ पर भी देखो वो क्या कह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी
कि इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, तो अभी हमने पढ़ा स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, कि कंज्यूमरिज्म इतना फैल गया कि लोगों ने स्पेंड थ्रिफ्ट हो गए, नकल करनी शुरू कर दी और देखा देखी में उस खर्चे को इतना अपना बढ़ा दिया कि उनकी वो इनकम भी उस खर्चे को पूरा नहीं कर पाई, इंक्रीज इनकम भी, तो इससे नुकसान होना शुरू हो गया। तो ये भी इसका एक आप कह सकते हो नेगेटिव साइड ऑफ दिस पॉलिसी। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड ग्रोथ। देखो बैलेंस ग्रोथ होती है जिसमें तीनों सेक्टर इकट्ठे ग्रो करें, एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो करे, सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो करे, एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा सर्विस सेक्टर। लेकिन यहां हुआ क्या, ज्यादा ग्रोथ सर्विस सेक्टर की हो गई, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वो जो दोनों सेक्टर यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वो थोड़े निग्लेक्ट हो गए। देखो, it has been limited only, the growth was limited only in the service sector, that is information technology, finance, travel, hospitality services, etc. Whereas agriculture and industries were not fully developed. और लास्ट वही पॉइंट जो मैंने अभी इंडस्ट्री की बात ही की है, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का लेवल कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं इस पॉलिसी से, बल्कि कम रह गया। कैसे? एनुअल ग्रोथ रेट एज पर द GIIP मींस जनरल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जनरल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बिफोर द रिफॉर्म्स इट वाज 7.8% between 1981 to 91, and after the reforms it was 5.8% between 1993 to 2003। जो अराउंड 8% था वो 6% रह गया। इसके पीछे कुछ कारण थे। पहला तो इंपोर्ट ड्यूटीज हट गई तो फॉरेन गुड्स चीप हो गई। अब जो इंडस्ट्रीज कंपीट नहीं कर पाएंगी, प्राइस को मेंटेन नहीं कर पाएंगी, वो पीछे हो जाएंगी, पेरिश हो जाएंगी। तो यही हुआ। इंडियन इंडस्ट्रीज आर फेसिंग कंपटीशन ड्यू टू दिस, एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज वर नॉट एडिक्वेट फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसके साथ ही हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बहुत डिटेल में पढ़ लिया, इसके हर पार्ट को डिटेल में कर लिया कवर। यहां हमने एक WTO के बारे में भी पढ़ा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और अभी हमने अप्रेजल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम सुनेंगे इसी के रिलेटेड दो टॉपिक हमारे पास जो सिलेबस में है, कि क्या है हमारा GST, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, और डीमोनेटाइजेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स। ये दो टॉपिक हमारे रह गए, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यही रिक्वेस्ट है बेटे आपसे, खूब लगन के साथ इसको करते रहो। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर मुझे आप डाल सकते हो, अपना क्वेरी अपनी जो है ड्रॉप करो। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, इन वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मेरी एक ही सिर्फ इच्छा है कि आप अच्छी तरह से साथ साथ पढ़ते चले जाओ। आपकी कोई भी डाउट्स है आप बिल्कुल फ्री टू आस्क एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट, बट बेटर दैट यू प्लीज स्टडी साइमल्टेनियसली विद द क्लास। जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।